Hello student, I am Hussein sir and today we will see law of diminishing marginal utility. In previous lecture we had seen the concept of total utility and marginal utility. Now in this lecture we will see the meaning of law of diminishing marginal utility, its schedule, diagram, assumption, exemption, limitation and importance. Let us start. Law of diminishing marginal utility. What is meant by law of diminishing marginal utility? The law of diminishing marginal utility explains economic behavior of a rational consumer. Mr. H. Gossen, a German economist, was the first in 1854 to explain this law, and hence it also called as Gossen's first law of consumption. Later, Professor Alfred Marshall restated and propounded the law in his book Principle of Economics in the year 1890. This law have fundamental some principles. First, the more we have, the less we want of it. Only a single want is satisfied at a time. Now let us see the meaning of law of diminishing marginal utility. Other things being equal, the additional benefit which a person derives from the increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock of that he already has. Professor Alfred Marshall. According to Professor Alfred Marshall, other thing being constant, when there is an increase in the unit of a commodity in the consumption process, the utility which will derive from that unit which we have consumed go on diminishes. Whenever we will increase the unit in consumption process, the utility will decrease. Total utility will increase but in diminishing rate, and marginal utility will decreases. This law is called law of diminishing marginal utility. किसे कहेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? आसान भाषा में हम इसे समझते हैं, जब हम कंजम्पशन प्रोसेस में जैसे जैसे यूनिट के कंजम्पशन में इंक्रीमेंट करते जाएंगे, यूनिट में एडिशन करते जाएंगे, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो यूटिलिटी कम कम होते जाएंगी, डिक्रीज होती जाती है. तो इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इट इज़ ऑल्सो ए important law of consumption. Whenever we increase an unit of a commodity in consumption process, the utility which will derive from consumption of that commodity will go on diminishes. जैसे जैसे हम यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो यूटिलिटी हमारी कम कम होते जाती है. तो इसी लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है इसमें ये कहा गया है वो जो एडिशनल बेनिफिट इंसान को मिलता है अपने स्टॉक में इंक्रीमेंट करने पर, वो जो है वो जैसे जैसे स्टॉक में इंक्रीमेंट होता जाएगा तो हमारे पास जो चीज़ें हैं उसमें बढ़ोतरी होने के साथ साथ अब हमें जो है उस चीज़ों की चाहत बहुत कम होती रहती है. यानी हमें जो है उन प्रोडक्ट से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम कम होती रहेंगी. तो इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इन सिंपल वर्ड, एज द कंज्यूमर एक्वायर्स और कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, the marginal utility derived from every successive unit goes on declining. सिंपल वर्ड में हम इसको समझ सकते हैं, जैसे जैसे कंज्यूमर जो है अपने कंजम्पशन में यूनिट बढ़ाते जाएगा, इंक्रीमेंट करते जाएगा,
तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम कम होते जाती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेट अस सी schedule of law of diminishing marginal utility. We can explain law of diminishing marginal utility with the help of this schedule. Here we will take the same example which we had taken in previous lecture. Now here is a chocolates, number of chocolates and marginal utility. When we consume first chocolate, the marginal utility will be highest, that is 10 units. When we consume the second chocolate, the utility will derive from second chocolate will less than the first chocolate. जैसे ही हम सेकंड चॉकलेट कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ी कम होंगी। उसी तरह अब हम जब थर्ड करेंगे कंज्यूम चॉकलेट तो और कम होते जाएंगी यूटिलिटी। तो इस तरह जैसे जैसे हम यहाँ चॉकलेट का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, यूज़ बढ़ा रहे हैं, कंजम्पशन इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम कम होती रहती है। और एक स्टेज ऐसा आएगा जब हम यूनिट कंज्यूम करेंगे, चॉकलेट खाएंगे, रोटी खाएंगे या कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो अब ज़ीरो हो जाएंगी, वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिफ्थ चॉकलेट जैसे ही हम खाएंगे तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो ज़ीरो है, यानी हमें अब इससे कोई यूटिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो ये पॉइंट को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को अब कंजम्पशन प्रोसेस रोक देनी चाहिए। अगर कंजम्पशन यहाँ रुकता नहीं है, आगे बढ़ता है, तो अब यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी वो निगेटिव हो जाएंगी। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल हम इनसे ले सकते हैं कि हम रोटी खाने के लिए अगर बैठे हैं तो हम फर्स्ट चपाती या पराठा या रोटी खाते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हो है और पहली रोटी जब हम खाएं तो बहुत ज़्यादा हमें यूटिलिटी मिलेंगी। फिर धीरे धीरे हमारा पेट भरते रहेगा तो हमारी यूटिलिटी जो है ज़रूरत कम होते रहेंगी और हमें जो है यूटिलिटी वो यूनिट से कम कम होती जाएंगी। एक सिचुएशन ऐसी आएंगी जहाँ पे हमारा पेट पूरा भर जाएगा, हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो उसके आगे अब हम कोई रोटी कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमने ज़बरदस्ती रोटी कंज्यूम की, यूनिट कंज्यूम किए, तो हमें जो है वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी या फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये शेड्यूल जो है हमने यहाँ पे अभी देखा है कि वही है कि पहले फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जो है पहले यूनिट पे यूटिलिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट है, फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जो है यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग रेट में मिल रही है, फिफ्थ में ज़ीरो है और सिक्स्थ वाले इसमें हमें नेगेटिव यूटिलिटी यहाँ पे देखने को मिली है। तो उसी तरह आप फिफ्थ में ज़ीरो है और सिक्स्थ में नेगेटिव है। नेक्स्ट अब हम इसे डायग्राम की मदद से समझेंगे। लेट अस सी द law of diminishing marginal utility with the help of diagram. This is x axis and y axis. Here on x axis number of unit consumed, यहाँ पे जितने यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो मेंशन है, एंड हियर द मार्जिनल यूटिलिटी विच इज़ डिराइव फ्रॉम दैट यूनिट मेंशन ऑन y एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट थी। अब जैसे जैसे यहाँ यूनिट के कंजम्पशन में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी वो कम कम होते जा रही है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे कर्व जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है, ये नीचे की तरफ होता है। तो ये नीचे नीचे होता आ रहा है और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आया है फिफ्थ वाले यूनिट पे जहाँ पे मिलने वाली यूटिलिटी वो ज़ीरो है। उसके बाद भी जब हम कंजम्पशन चालू रखते हैं तो यूटिलिटी अब निगेटिव हो जाएंगी। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हियर वी हैव टू स्टॉप द कंजम्पशन प्रोसेस। इफ़ वी डिड नॉट स्टॉप द कंजम्पशन प्रोसेस, वी कंटिन्यू कंजम्पशन प्रोसेस, वी विल गेट द निगेटिव यूटिलिटी, निगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर हम कंजम्पशन प्रोसेस यहाँ पे जो है रोकेंगे नहीं तो हमें जो यूटिलिटी है वो मिलने वाली यूटिलिटी वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो यही जो हमने
देखा है कि ये जो पॉइंट है आपको मैंने यहाँ पे बताया हो, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। तो यहाँ कंजम्पशन हमें स्टॉप करना है, नहीं तो नेगेटिव हो जाएंगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ after that we have to see the assumption of law of diminishing marginal utility. Every law, each and every law has or have some assumptions, and it is applicable on certain condition. If those conditions are not applied, this law will not be applicable. Same as other law of diminishing marginal utility has also some assumptions. दूसरे लॉ की तरह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के भी कुछ एजम्पशन है, अपवाद है। ये कुछ कंडीशन पे ही अप्लीकेबल होगा, अगर वो कंडीशन वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होंगी तो ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जो है उसका सीक्वेंस थोड़ा हमने यहाँ पे चेंज किया और एक स्मार्ट कोड यहाँ पे बनाया गया है ताकि आपको ये सारे पॉइंट याद रहे। देखिए एजम्पशन को हमने एजम्पशन कोड बना लिया है, जो है हमने थोड़ा सीक्वेंस में चेंज किया। देखिए अदर फैक्टर कांस्टेंट कहाँ था, हमने उसको ऑल अदर फैक्टर्स कर लिया ताकि इसका पहला अल्फ़ाबेट ए ले। उसके बाद था रीजनेबल कमोडिटी साइज़, जो है हमने उसको साइज़ ले लिया। कंटिन्यूअस कंजम्पशन सक्सेसिव कंजम्पशन है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिट, मेजरमेंट प्रोडक्ट और कमोडिटीज़ डिविजिबल। तो हमने ये इसलिए लिया है ताकि जो है हम इससे एक स्मार्ट कोड बना सके और वो स्मार्ट कोड की मदद से आपको ये सारे पॉइंट याद रहे। तो देखिए एजम्पशंस का स्मार्ट कोड या एजम्पशन ही है, आपने ये पहला अल्फ़ाबेट याद रख लिया तो ये पूरे पॉइंट भी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट एजम्पशन इज all other factors remain constant. In the definition, in starting we had seen the one line that is other things being constant. Other things means other factor like income, taste, habit, choices, like dislike or a consumer like dislike of a consumer should remain constant. For application of this law, the other things being constant, and this law will applicable when other things, that is income of a people, taste, habit, choices, fashions, like dislike of a consumer should remain constant. The law begins with the word other things being equal, that is the law assumes that the factor affecting utility of the commodity to be constant. The law also assumes that the marginal utility of each unit of a money remain constant for a consumer. Example, no change in price, income of consumer, habit, preferences. पहला ही एजम्पशन है कि ये लॉ अप्लीकेबल तभी होगा जब अदर जो थिंग्स है, दूसरी जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर चेंजेस होंगी तो ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो है टेस्ट ले लेते हैं। पहला पराठा आपने खाया, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, आपने खाया, आपको यूटिलिटी अच्छी मिली। लेकिन दूसरा पराठा, अगर घी का पराठा आपको मिला, उसमें बटर का, ठीक है, पराठा मिला, उसका टेस्ट उससे ज़्यादा था, तो क्या होगा यहाँ पे कि पहली रोटी से ज़्यादा यूटिलिटी आपको दूसरी रोटी में मिल जाएंगी। तो यहाँ ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि लॉ क्या कहता है, जैसे जैसे आप यूनिट के कंजम्पशन में इंक्रीमेंट करते जाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो कम कम होते जाएंगी, वो डिमिनिशिंग होनी चाहिए। तो यहाँ अगर टेस्ट चेंज रहेगा, पहले पराठे का अलग, दूसरे पराठे का और टेस्टी अगर रहा तो उसमें तो ज़्यादा यूटिलिटी मिल जाएंगी। तो ये लॉ के लिए ज़रूरी है कि बाकी चीज़ें जो है सारी की सारी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। Next, size of the commodity is reasonable. It is assumed that all the unit of a commodity consumed are neither very small nor very big. The size of a commodity is reasonable, that is of a standard size. यह लॉ में एज्यूम किया जाता है कि जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं
यूज़ कर रहे हैं वो साइज़ में, शेप में, स्ट्रक्चर में एक जैसी होनी चाहिए। अगर वो एक जैसी नहीं होती तो ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। इसका हमने बेस्ट एग्जांपल दिया है। अगर हम बहुत ज़्यादा प्यासे हैं, हमें प्यास लगती है, तो अगर आप जो है फर्स्ट टाइम चम्मच से अगर पी रहे हैं, ठीक है, उसके बाद गिलास से पी रहे हैं, फिर आप बड़े मग से पानी पी रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यूटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ती जाएंगी, बढ़ने के बजाय जो है कम होंगी। पहले आपने जो है वो थोड़ा जो है एक आधा गिलास पानी पिया, फिर उसके बाद सेकंड टाइम आपने एक चम्मच से पिया, तो एक छोटे से चम्मच से प्यास जो है वो बुझने वाली नहीं है, बल्कि आप और जो है आपको ज़्यादा प्यास लगेंगी। मतलब यूटिलिटी कम होने के बजाय जो है वो बढ़ती जाएंगी। तो इस लॉ के एप्लीकेबल के लिए ज़रूरी है कि साइज ऑफ ए कमोडिटी शुड बी कांस्टेंट, रीजनेबल, सेम, इक्वल। Now third assumption is continuous consumption, that is here we have write successive consumption. The consumption process must be continue. If we take the break in consumption process, then this law will not applicable in that condition. वो जो कंजम्पशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, तभी ये लॉ अप्लीकेबल होगा। अगर हमारी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं होती तो ये लॉ वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम जो है एक रोटी हमने अभी खाए, एक रोटी हम आधे घंटे के बाद खा रहे हैं। अगर ब्रेक में आप चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो आपकी भूख कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। आप ये प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, अगर आप थोड़ा ब्रेक में खाते हैं तो जो है आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करेंगे और आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेंगी। जैसे आपका रूटीन है कि आप 2 ही पराठे डेली खाते हैं, अब आप इसे जो है प्रैक्टिकली भी ले सकते हैं। आपने अभी जो है एक रोटी खाए, फिर आपने आधे घंटे के बाद एक रोटी खाए, फिर आपको भूख और ज़्यादा लग जाएंगी, पेट भरने के बजाय आपको भूख लगती जाएंगी, और जो सेकंड वाले यूनिट में मिलने वाली यूटिलिटी है वो पहले से ज़्यादा होती जाएंगी। तो इस लॉ के लिए ज़रूरी है कि ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। इसका अब एग्जांपल आपको मैं दे चुका हूँ। आफ्टर 1 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम, द कंज्यूमर कैन नॉट कंज्यूम द नेक्स्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आफ्टर 2 or 3 hours or the next day. The consumption should be back to back and continue. Now next, uniformity of units. It must be remember that this law will applicable only there is an uniformity of uniformity between amongst all unit of a commodity which are consumed by consumer. वो सारे प्रोडक्ट जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, वो सारे प्रोडक्ट जो है वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए साइज में। कोई प्रोडक्ट अगर छोटा साइज़ का है, कोई प्रोडक्ट अगर ज़्यादा साइज़ का है, तो वहाँ पे ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी assume that all the unit of a commodity being consumed are uniform, they are same or identical in term of shape, size, color, smell, etc. एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं, if the commodity being consumed in a is a Cadbury dairy milk, then all the other unit consumed also should be Cadbury dairy milk only. The consumer cannot change the chain to dairy milk silk. मीन्स जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं वही प्रोडक्ट जो है हमें कंज्यूम करना चाहिए। उसके बजाय अगर हम दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है उसका टेस्ट, उसकी साइज़ अलग हो और उससे मिलने वाली यूटिलिटी वो जो है वो डिफरेंट हो जाए। अगर आप एक जैसे यूनिट कंज्यूम करेंगे तो ही ये लॉ अप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अब आप ले लें यहाँ पे पराठे का ही ले, ठीक है, पहला पराठा आपने खाया, ठीक है, वो ठीक है बड़े साइज़ का था, उसमें यूटिलिटी बहुत मिली। अब दूसरा पराठा खाया जो आप बहुत स्मॉल साइज़ का था, तो स्मॉल साइज़ का पराठा खाने में आपको जो है आपकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, ठीक है, तो उससे जो है आपका पेट भरेगा नहीं।
तो यूटिलिटी कम होने के बजाय उसमें तो बढ़ जाएंगी, कम इसमें आपको ज़्यादा भूख लगेंगी। उसी तरह अगर आप पराठा, आपने जो है पहला यूनिट पराठा खाए तो यूटिलिटी मिली, उसके बाद आपने फिर जो है तंदूरी रोटी बुलाए तो तंदूरी रोटी में आपको ज़्यादा टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह डेयरी मिल्क का भी हमने एग्जांपल लिए, एक डेयरी मिल्क चॉकलेट आप खा रहे हैं, ठीक है, और डेयरी मिल्क के बाद दूसरा अगर आप डेयरी मिल्क सिल्क या फिर कोई दूसरा अगर चॉकलेट आप कंज्यूम करें उसका टेस्ट अलग हो तो यूटिलिटी जो है वो कम होने के बजाय आपकी यूटिलिटी बढ़ भी सकती है। तो वी शुड रिमेंबर दैट ऑल द यूनिट विच आर कंज्यूम बाय कंज्यूमर शुड बी यूनिफॉर्म इन सेम in size, shape, color and taste. Now next, measurement. It is the most important assumption here. We know that every law is depend on some conditions, prediction. Here it is very difficult to measure the utility in numbers, but for understanding the law easily, we have to take the help of number for measuring the law of diminishing marginal utility. Here utility is a psychological concept and therefore it is not measurable cardinally. However, for explaining the law of diminishing marginal utility, Professor Marshall assume that utility can be measured cardinally, that is it can be expressed in number. ये हमें पता है कि प्रैक्टिकली हम देखें तो यूटिलिटी ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो नंबर में तो मेज़र नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मार्शल ने जो है इसे नंबर की मदद से इसको एक्सप्रेस किया है, यानी हम लॉ को समझने के लिए जो है इसे नंबर में मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम ये नहीं कह सकते ना कि पार्ले जी बिस्किट जो है कंज्यूम करने के बाद हमें जो है वो 10 यूटिलिटी मिली और 20 या दूसरा बिस्किट एज्यूम करने पे हमें 5 यूटिलिटी मिली, लेकिन मदद जो है हमें यहाँ नंबर की लेनी पड़ेगी। पहला यूनिट आप एज्यूम कर रहे हैं, पहला बिस्किट आप खा रहे हैं तो आपको 10 यूटिलिटी मिल रही है, दूसरा बिस्किट खा रहे तो 8 यूटिलिटी मिल रही है, तीसरे में 6। तो यहाँ पे क्या है एजम्पशन में, वी एज्यूम दैट द यूटिलिटी कैन बी मेजर कार्डिनली इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट और कमोडिटी इज डिविजिबल, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट assumption of law of diminishing marginal utility. The unit which we will consume, we should assume that it must be divisible into the various small parts, and due to that we can easily consume the product and unit of that product. वो यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं कंजम्पशन प्रोसेस में, वो यूनिट जो है वो इजीली डिविजिबल होना चाहिए। हम उसे जो है छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में आसानी से डिवाइड करके कंज्यूम कर पाए, तभी ये लॉ अप्लीकेबल होगा और हम जो है उससे मिलने वाली यूटिलिटी को नंबर में एक्सप्रेस कर पाएंगे। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज्यूम दैट द कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट so that it can be purchased or acquired in small quantities and consumed quickly. जो भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए ताकि उसे आसानी से जो है खरीदा भी जाए और कंज्यूम भी किया जाए। द मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन कांस्टेंट। हियर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। ये लॉ जो है इसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे यूनिट में इंक्रीमेंट होता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी वो कम कम होती रहती है, लेकिन मनी एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसकी यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। इट इज एज्यूम दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कंजम्पशन फॉर ए कंज्यूमर। If the marginal utility of money changes due to increase or decrease in income, then it cannot be a correct measurement of marginal utility of a commodity. In short, the law will not hold good. यहाँ पे हमें ये एज्यूम करना चाहिए कि marginal utility of money remain constant throughout the period of consumption. Next, only single use.
the units which we are consuming, we should assume that it has a single use. If it has several uses, then this law will not applicable in this condition. वो यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, वो यूनिट प्रोडक्ट का जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये एज्यूम होना करना चाहिए हमें कि उसका एक सिंगल ही यूज़ होगा, उसका एक ही बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर एक से ज़्यादा उसके यूजेस होंगे तो ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसे हम, ठीक है, कई ज़्यादा कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर पहले काम में हमने उसे इस्तेमाल किया, ठीक है, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो अलग होंगी. अगर वही जो है हम दूसरे कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी और ज़्यादा हमें मिले. तो ऐसे कई प्रोडक्ट होते हैं जिसके एक से ज़्यादा यूजेस होते हैं, वो प्रोडक्ट को ये अप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होता. तो हमें एज्यूम ये करना चाहिए जो यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं उसका सिंगल ही यूज़ हो तो ही ये लॉ अप्लीकेबल होता है. तो इट इज़ एज्यूम दैट द कमोडिटी is used to satisfy only a single want. If the commodity satisfy many want, the law of diminishing might not apply as the marginal utility will keep increasing. वो बढ़ते ही चले जाएंगे, इसलिए ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा. The consumer will keep using the commodity to satisfy his various want. Normal और rational behavior. हाँ, this was the first point in our textbook, but as per for creating the smart code we keep it at number 9. It should be assumed that the person who are consuming the unit of a commodity should be a sound mind person or a rational person. His mental condition should be sound. He should know what is good, what is bad. वो पर्सन जो यूनिट कंज्यूम कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, वो नॉर्मल पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए. वो इडियट, लूनाटिक या अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होना चाहिए. अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का होगा तो उसको जो मिलने वाली सारी यूनिट की यूटिलिटी वो एक जैसी होंगी. आप देखिए जो अनसाउंड माइंड के पर्सन होते हैं जिनका दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, जब वो किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही कंज्यूम करते रहते, तो उन्हें जो है किसी चीज़ का एहसास नहीं होता है. यानी उनके लिए वो सारी यूनिट की यूटिलिटी इक्वल है. वो लॉ उन जैसे लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता. इन order for the law of diminishing marginal utility to apply, it is assumed that the consumer is rational and behave normally. The aim of the consumer should be to maximize his satisfaction. तो यहाँ हमने देखा कि वो पर्सन जो यूनिट कंज्यूम कर रहा है वो पर्सन जो है वो रैशनल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, वो नॉर्मल इंसान होना चाहिए जिसकी दिमागी हालत ठीक हो और उसका उद्देश्य होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल करना. तो ऐसी सिचुएशन में ही ये लॉ अप्लीकेबल होगा. Dear student, here we have seen the meaning of law of diminishing marginal utility and its assumptions. Now, in next lecture, we will see exception and limitation or criticism of the law. हमने इस लेक्चर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की मीनिंग देखी है और उसके एजम्पशन देखे हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके बाद का टॉपिक देखेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए. आपके जो भी सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपके जो भी सजेशन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. थैंक यू.